तो ये मैंने वीडियो जो है रुक गई थी, बना रहा था। अब ऐसे कुछ हम नाम अपने बता रहे हैं, आइडिया आपको कि कैसे प्रैक्टिस करना है। आप क्या करोगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने ब्लॉक हैं उनका नाम निकाल के उनको नोट कर लो सब, और सबको नाम नेम लिख लो। जितनी तहसील हैं तहसील का नेम निकाल करके सबका नेम ऐसे नोट कर लो, देख लो, प्रैक्टिस कर लो। और फिर उसके बाद यूपी के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं 77 78 जो भी हैं, उन डिस्ट्रिक्ट का नेम पूरा लिख लो। फिर कुछ नेम आसपास के गांव के में आसपास के जितने लोग हैं उनका नेम नोट करके वो प्रैक्टिस कर लो। तो इजी हो गया फिर आपके लिए, कुछ बचा नहीं हो कि आपको दिक्कत आएगी आप लिख रहे हो तो फिर कुछ बचता नहीं है, हो जाता है, इजी आसान हो जाता है। हमें कहीं भी बैठना है, कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप रहेगा कि मैंने शुरू से ये चीज़ें, इसलिए आप लिखोगे नेम वगैरह जो भी है, जहाँ भी है कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे यही है जरिया, और मतलब ये सीखने का। हमने ये नाम स्थान हो गया, किसी व्यक्ति वस्तु नेम लिख करके उनको एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे और ये क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं ग्रामर, जिसमें क्या हम पढ़ रहे हैं कि जो हिंदी के सेंटेंसेस हैं, जो हिंदी के वर्ड हैं, जो हिंदी के अक्षर हैं, उनको इंग्लिश में क्या करना, कन्वर्ट करना है। उनको इंग्लिश में हमें कन्वर्ट करना सीखना है, इंग्लिश में बदलना है। तो मैंने बताया था कि मैंने ढेर सा इससे पहले भी वीडियो बनाया है जो उसमें बताया कि ऐसे ऐसे ये चीज़ें हैं। तो पता है कि क्या करना है। ग्रामर क्या होता है? ग्रामर यही होता है कि व्याकरणवाद विद्या है। ग्रामर मीन्स व्याकरण होता है, व्याकरणवाद विद्या है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना और समझना सीख जाते हैं। तो ये होता है व्याकरण। बोले तो grammar is the set of a certain rule which is governing to phrases and clauses in a meaningful in a format, in a form, for the making a meaningful sentences, you know already। then कुछ इसके बेसिक्स रूल हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है तो बहुत आसान हो जाएगा एक्चुअली। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें पता है। आपने बहुत लोग क्या है कि ये 1 से या LKG UKG से 12 तक गए हुए हैं, बट उन्हें कॉन्फिडेंस वो नहीं है कि हमें इंग्लिश आती है, ड्यू टू सम रीजन बिहाइंड ऑफ दैट। कुछ ने बीटेक कंप्लीट कर लिया, कुछ ने BSc कंप्लीट कर लिया, बट दे हैव नॉट मोर कॉन्फिडेंस, they are not too able to speak to in front of peoples. They are feel very lacks of confidence, although they have many a lot of word meaning, but they are feel the lacks of confidence due to some reason. That reason is this one, which is I just going to clear. Previous 3 days I try to boost up your confidence, how to you speak in in public. Actually you have more knowledge, you are study UKG to 12th, although you have done BTech, although you have done BSc, which is in in BSc, all subject is in English if you are a student of Hindi medium from 1 to 12th. But if you have completed the BSc, then you have your all subject in English. If you are reading from CBSE board, then your syllabus is from LKG UKG to 12th, although in English. CBSE board students always read in English from UKG to 12th, but they have not too a lot of confidence for the speaking in publicly. So because of why they have not too more much confidence. But I'm just going to how to your boost up confidence and how to you speak very well in public, in front of peoples. You connected with me for 1 month, then you see you are able to speak.
अभी मैंने बताया कि ये तरीका है एक्चुअली, बिकॉज यू हैव a lot of word meaning, you have a lot of you have done the a lot of sentences, you are making the a lot of sentences, but only you have not too confident for the speaking. You are always feel some shame on in front of people, and you are not too you have not too more much confidence. So, because of why your grammar is too much big, I think so. You are feel always if you are not too able to making sentences according to grammatical, then some people do love you, but this is not to matter. You are not to This is not to matter if you are speaking. Actually, if you are speaking in English, this is not to matter. You are not to able to make the according to grammatical. Actually, if you are speaking, then this is mandatory. If this is good if you are speaking, but this is not too mandatory. You are always to speak in grammatically. Actually, if you are start, then after some time you see you are speaking very well without facing any problem, without doing any mistake. But in all first, you have need to start actually. Okay, now I'm just going to discuss about two tense. टेंस हाउ टू मेक हमने क्या पढ़ रहे हैं, हम ग्रामर पढ़ रहे हैं. ग्रामर में अभी मैंने बताया कि ग्रामर की जो डिफिनीशन है, वी आर मेकिंग ए मीनिंगफुल सेंटेंसेस, जिसका एक अर्थपूर्वक क्या है, एक शब्द एक वाक्य बनना चाहिए. इसका मेन उद्देश्य ये है ग्रामर का कि हम जो एक मीनिंगफुल अर्थ निकलना चाहिए, एक मीनिंगफुल वाक्य बनना चाहिए. ग्रामर का मेन मकसद, मेन उद्देश्य यही है कि उसका एक मीनिंगफुल वाक्य बनना चाहिए विद द हेल्प ऑफ फ्रेजेस, क्लॉजेस. ओके, तो हम वहां तक पहुंचेंगे. तो कैसे? तो हम अभी टुडे वी जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट टू टेंस. ओके, तो ये टेंस जो है, टेंस क्या है? टेंस हम पढ़ेंगे जैसे ही. तो ये 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता है. हमने प्रेजेंट पढ़ना है. ओके, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. ओके, ये पढ़ना है. ये 3 टेंस हैं. After some time you see your confidence too much high, low to high. When you completed this 3 term, present tense sentences how to making, and past tense sentences how to making, and future tense sentences how to making, then you have the lot of confidence for the speaking and the in grammar. Actually, if you have see the any sentences in Hindi, how to convert to it into English, then you have to more knowledge. If you are assume all about how to translate with the help of according to present tense rule, according to future tense rule, according to past tense rule, particular one प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, इनका जो अपना अपना रूल है, इनके मदद से हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ये आप इजली देखने के बाद आप आराम से ट्रांसलेट कर लेंगे. तो हम चलते हैं कैसे. देखो, ये हो गया ना. तो अब इनके प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट मीन्स वर्तमान काल, पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल, फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल. अब इनके पर्टिकुलर 4 पार्ट हैं. इनके 4 पार्ट हैं, फिर पास्ट के 4 पार्ट हैं, फ्यूचर के 4 पार्ट हैं. ये टोटल हो जाते हैं 12 पार्ट. 12 पार्ट होता है. हम उनका पर्टिकुलर 1 का सबका 12 का 1 2 3 4 करके 12 तक हम पढ़ेंगे. ठीक है, कैसे पढ़ते हैं चलते हैं. तो हम चलेंगे सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस.
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्पेलिंग ध्यान से देखना, मिस्टेक नहीं करना है, स्पेलिंग इज करेक्ट। ओके, इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, हम क्या जा रहे हैं, हम जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो वाक्य होंगे उनको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें। हम क्या करने जा रहे हैं, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य हैं, सेंटेंस हैं, उनको इंग्लिश में हम कैसे कन्वर्ट करें। तो ये अभी मैं बताता हूँ आपको कुछ चीज़ें। इससे पहले और रिवीजन कर दूँ, मैंने बता रखा है, फिर से एक बार रिवीजन करेंगे हम। देखिए, जो आई और बी मैंने बताया आपको, आई एंड बी, यू नो, आई एंड बी, ये फर्स्ट पर्सन के करता है, फर्स्ट पर्सन के करता है, ठीक, फर्स्ट पर्सन के करता, मैंने बता रहा था वीडियो में, ये बार बार आएगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये याद रखना है। यू, ये आपका सेकंड पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे एंड कोई नेम एंड एनी नेम, ये थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट हैं। ये चीज़ आप रिमेम्बर चलना साथ ही साथ। ये तो पर्सन की बात हो गई, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और एक चीज़ और फिर मैंने बता रखा है, फिर मैंने क्या बताया हुआ है, मैंने बताया हुआ है कि नंबर बताया हुआ है, क्या नंबर बताया हुआ है क्या। ये टू टाइप के होते हैं, एक होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा है प्लूरल नंबर। जब ये नंबर की बात आती है, एक नंबर की बात है, सिंगुलर नंबर मीन्स दैट एक वचन, और प्लूरल नंबर मीन्स दैट बहुवचन। सिंगुलर नंबर एक वचन में हमेशा ही, सी, इट, ओके, एंड अकेला कोई नाम, एनी नेम, अकेला कोई नाम, ठीक है, अकेला कोई नाम, एनी नेम ऑफ सिंगल नेम, अकेला कोई नाम, ठीक, अकेला कोई नाम है, जैसे रवि है तो रवि केवल, नॉट रवि एंड रामू, वल्ली रवि, ओके, रामू तो रामू दे, ठीक है, श्यामू तो श्यामू, उसके साथ एंड ना लगा हो, अकेला कोई नाम, ठीक, ओके। और प्लूरल नंबर मीन्स ये आपका, इसमें जो है अकेला कोई नाम नहीं, इसमें एक से अधिक नेम आएंगे, और साथ ही साथ ये आई और बी भी, और यू भी, और दे भी, और एक से अधिक नाम, मोर देन वन नेम, ठीक है, मोर देन वन नेम, आई, बी, यू, दे एंड मोर देन वन नेम बोले तो, जैसे रवि एंड रामू ऐसे एंड करके अगर लगा है तो देन ये काउंट होगा प्लूरल नंबर में, और सिंगुलर नंबर में अकेला कोई नाम रहेगा, ओनली वन नेम, ये सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट हैं। और फिर हाँ, इतना ही याद रखना ठीक है, क्योंकि ये जब भी सेंटेंस हम बनाएंगे हम बार बार ये बोलते रहेंगे, और कम्युनिकेशन के दृष्टिकोण से भी ये अच्छा है आपके लिए। तो ठीक है, फर्स्ट थिंग ये है, देखिए, और दो तीन वर्ड और बताते हैं आपको, क्या, एक ये अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस,
या इसको आर करके पॉजिटिव सेंटेंस ले लेते हैं, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये रूल बताएंगे हम। सेंटेंस कितने प्रकार के जो वाक्य हमें रहते हैं ट्रांसलेट करने के लिए आता है, वो ऐसे ही आता है। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, निगेटिव सेंटेंस होता है, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस ये पॉजिटिव सेंटेंस भी इसको बोलते हैं, और निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस इन सेंस साधारण वाक्य, सिंपल वाक्य, ठीक है। तो हम इसको अब पर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसके